today's lecture, and after the lecture I'm gonna share some good news with you. So let's first start a lecture and then I will share some news with you. सर पहले न्यूज़ शेयर कर लें सर। यस सर। न्यूज़ पहले बता दी तो फिर मज़ा नहीं ना आएगा, इसलिए पहले लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं सर फिर क्यूरियोसिटी होगी सर, फिर पढ़ नहीं होगा। नहीं, वो न्यूज़ मेरे पास अभी है नहीं ना, अभी वो लास्ट में मेरे पास आएगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी सर ऐसे तो ना गए ना। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक स्टडी किया था। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? जी सर खुशी ज़्यादा समझ आएगी सर, बता दो। सॉरी, आवाज़ आपकी कम आ रही है, बोलें दोबारा। मैंने कहा सर खुशी ज़्यादा समझ आएगी, बता दें सर। नहीं, उसमें समझ नहीं आएगी आपको, इसलिए जस्ट वेट फॉर 40 मिनट्स एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये यहाँ तक स्टडी किया था, जिसको हमने कहा था कि जो 4 रिलेशनशिप्स हमने डेवलप किए हैं एंड द बैकग्राउंड फॉर दीज डेवलपमेंट ऑफ दीज रिलेशनशिप्स इज़ द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। मैंने कहा था कि एग्जैक्ट इक्वेशन जो होती हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन में डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस का क्राइटेरिया होता है, और अगर वो मीट हो रहा हो then you can solve those equations easily and can find the solution. So from that degree of exactness we can relate these thermodynamic variables through these partial differentials, और इन partial differentials के जो आपस में relations हैं इनको हम मैक्सवेल relations कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू फेज सिस्टम्स। टू फेज सिस्टम्स की अगर हम बात करें, आपको पता है कि प्रेशर टेम्परेचर जो डायग्राम होती है which is also shown here on this slide, there are 3 lines on this pressure temperature diagram. One line will be showing the phase equilibrium between liquid and gas, the other is showing the phase equilibrium between solid and liquid, and the third one is showing the phase equilibrium between solid and gas or vapor, right? So across these solid lines there is a shift in phase or transition of phase from one phase to another phase. When we come from one side to another side of these solid lines, there is a transition of phase, and whenever the phase will be changing, that will always be at constant temperature and pressure. You know very well that whenever the phase change, it always happens at constant temperature and pressure. For example, the boiling point of water is 100 degrees centigrade, and that boiling temperature 100 degrees centigrade is only when you have an atmospheric pressure, right? So the temperature and pressure both are fixed, and as you are adding heat into the water, the temperature is constant 100 degrees centigrade and phase will be changing from liquid to vapors. And when all the liquid will disappear into vapor phase, then there will be increase in temperature. So whenever there will be phase transition or change in phase, it will always be at constant temperature and pressure. So that's what is written on this slide. Phase transition at constant temperature and pressure occurs whenever one of these curves is crossed, and as a result the molar or specific value of the extensive thermodynamic properties change abruptly. ठीक है, तो ये जितनी भी ये सॉलिड लाइंस हैं, इन सॉलिड लाइंस के अक्रॉस जैसे ही आप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड मूव करते हैं, तो जो भी मोलर प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की, वो चेंज होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे लिक्विड फेज में अगर कोई इंथाल्पी है और अगर वो फेज चेंज होकर वेपर फेज में चली जाए तो उसकी इंथाल्पी चेंज हो जाएगी। उसकी इंथाल्पी क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि उसमें कुछ हीट ऐड होगी और वो वेपर फेज में उसके पास ज़्यादा हीट होगी, क्योंकि वो फेज ट्रांजिशन के बाद वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ है ना। इसी तरह
किसी भी दूसरी फेज में, जैसे सॉलिड से लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज की इंथैल्पी डिफरेंट होगी, लिक्विड फेज की इंथैल्पी डिफरेंट होगी। तो जब भी आप एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट होंगे, देयर विल बी अ रिजल्ट ऑफ molar or specific values of the extensive thermodynamic properties change. Thus, the molar or specific volume of a saturated liquid is very different from the molar or specific volume of saturated vapor at the same temperature and pressure. यहाँ पे एक और, जैसे मैंने आपको इंथैल्पी की एग्जांपल दिया, इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी एग्जांपल है कि लिक्विड फेज में जो भी स्पेसिफिक इंथैल्पी है, यूनिट मास की जितना भी वॉल्यूम होगा लिक्विड फेज में, वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू द यूनिट mass volume, the volume of a unit mass of vapor. तो वो लिक्विड फेज में यूनिट वॉल्यूम और वेपर फेज में मोलर वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम्स वो डिफरेंट होंगे। दिस इज ट्रू एज वेल फॉर इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ये बाकी जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सारों के लिए एप्लीकेबल है कि जैसे ही फेज चेंज होगी तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वन फेज में डिफरेंट होंगी ये वैल्यू, और अगर वो फेज दूसरी फेज में चेंज हो जाती है तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। लेकिन एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसमें फेज चेंज होने के बाद भी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज गिब्स एनर्जी। द एक्सेप्शन इज द मोलर और स्पेसिफिक गिब्स एनर्जी, which for a pure species does not change during a phase transition such as melting, vaporization और sublimation। तो सिर्फ वाहिद एक प्रॉपर्टी है जिसको हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। वो गिब्स एनर्जी सिंगल स्पीशी के लिए, आप किसी भी फेज में हो, चाहे वो सॉलिड फेज हो, चाहे लिक्विड फेज हो या वेपर फेज हो, वो गिब्स एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। एंड व्हाई इज इट सो? उसके लिए मैं दोबारा ये बैक पे जा रहा हूँ, ज़रा आपको पहले उसका एक्सप्रेशन दिखा दूँ। ये एक्सप्रेशन नंबर 12 आप देख सकते हैं। इसमें ये गिब्स एनर्जी को रिलेट किया है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपको पता है कि जब भी कोई फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हैं तो ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी एंड द चेंज इन द गिब्स एनर्जी विल बी ज़ीरो। इट मीन्स दैट when there will be transition, the Gibbs energy will remain constant because Gibbs energy is a function of temperature and pressure. And as the temperature and pressure are constants during phase change, so there will be no change in the Gibbs energy. So consider a pure liquid in equilibrium with its vapors. अब एक केस ले रहे हैं कि आप अज्यूम करेंगे प्योर लिक्विड है जो कि इक्विलिब्रियम में है विद वेपर and existing in a piston cylinder arrangement that undergoes a differential evaporation at temperature T and corresponding vapor pressure P saturated। एक केस लिया कि हमारे पास एक स्पीशी है, प्योर स्पीशी जो कि लिक्विड फेज में है और वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और मैं फॉर एग्जांपल थोड़ी सी उसमें हीट ऐड करता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, और वॉल्यूम एक्सपैंड होने की वजह से या प्रेशर या हीट ऐड होने की वजह से उसमें कुछ वेपर्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे फेज चेंज हुई, लेकिन ये जो फेज चेंज हुई है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और उस टेम्परेचर के अगेंस्ट जो कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट है। क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एक्सटर्नल प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वो जो भी वेपर्स की फॉर्मेशन हुई है वो हीट ऐड होने की वजह से हुई है। तो चूंकि फेज चेंज हुआ इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। अब इक्वेशन 12 जो हमने अभी देखी है जिसमें गिब्स एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, इक्वेशन नंबर 12, इसी इक्वेशन नंबर 12 को अप्लाई कर रहा है इस केस के लिए कि इक्वेशन 12 अप्लाइड टू द प्रोसेस reduces to d and g is equal to 0 because the phase is transiting at constant temperature and pressure, so the change in the Gibbs energy will be 0 because the number of moles n is constant। क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, क्लोज सिस्टम है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, कहीं डिसअपीयर नहीं हो रहे।
तो अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट्स हैं तो उसको हम डिफरेंशियल से बाहर 1 अज्यूम कर सकते हैं और ये फिर सिंपल dg इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. And this requires the molar or specific Gibbs energy of the vapor to be identical with that of a liquid. तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये आइडिया हो गया कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर आप एक प्योर स्पीशीज लेते हैं और उसमें फेज चेंज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वहाँ पे जो भी गिब्स एनर्जी होगी, चाहे वो लिक्विड फेज की आप बात कर रहे हो या वेपर फेज की बात कर रहे हो, वो सेम होगी पूरे सिस्टम की. मोर जनरली for two phases, for example alpha and beta of a pure species coexisting at equilibrium. अब इसको हम जर्नल लेकर आ रहे हैं, हम लिक्विड वेपर सॉलिड की बजाय दो फेजेस की बात कर रहे हैं और एक फेज को हम अल्फा कह रहे हैं, दूसरे फेज को बीटा कह रहे हैं. वो अल्फा फेज कोई भी हो सकती है, सॉलिड फेज हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, वेपर हो सकती है, और बीटा फेज सिमिलरली सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वेपर्स हो सकता है. ठीक है, तो ये कोई भी फेजेस हो सकती हैं. तो एक जर्नल डिस्कशन के लिए हमने अल्फा और बीटा की टर्म्स इंक्लूड की कि अल्फा इज वन फेज, बीटा इज सेकंड फेज. तो उस केस में जो गिब्स एनर्जी होगी फॉर अल्फा फेज दैट विल बी इक्वल टू द गिब्स एनर्जी फॉर द बीटा फेज. ठीक है, क्योंकि डिस्कशन की लिक्विड और वेपर्स की, लेकिन मैंने कहा जैसे हमने ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में भी देखा कि फेज चेंज हो सकती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स. तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास. तो उसको जर्नल करने के लिए हमने अल्फा और बीटा के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया. वेयर जी अल्फा एंड जी बीटा आर द मोलर और स्पेसिफिक गिब्स एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल फेजेस. नेक्स्ट है क्लैपेरॉन इक्वेशन. द क्लैपेरॉन इक्वेशन इंट्रोड्यूस्ड एज डेल्टा एच is equal to T delta V dP saturated over dt follows from this equality. ये क्लैपेरॉन इक्वेशन हमने पहले भी शायद नाम सुना हो. क्लैपेरॉन इक्वेशन की जो बेस इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है कि G ऑफ अल्फा इज इक्वल टू G ऑफ बीटा. ये इसकी बेस इक्वेशन है और इस बेस इक्वेशन से ड्राइव होके बेसिकली ये क्लैपेरॉन इक्वेशन बनती है. और ये क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है कि जब भी कोई फेज चेंज हो रही होती है तो ये प्रेशर टेम्परेचर के लिहाज से बताता है कि कितनी हीट इन्वॉल्व होगी या लेटेंट हीट कितनी उसमें इन्वॉल्व होगी उस फेज चेंज के अंदर. अब ये हमने जो बेस इक्वेशन है जिससे हमने ये ड्राइव की क्लैपेरॉन इक्वेशन, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह इस बेस इक्वेशन से हम क्लैपेरॉन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी हाउ वी विल ड्राइव दिस क्लैपेरॉन इक्वेशन फ्रॉम दिस बेस इक्वेशन. If the temperature of a two-phase system is changed, then the vapor pressure or pressure must also change in accord with the relation between vapor pressure and temperature if the two phases continues to coexist in equilibrium. ठीक है, कि जब भी ये क्लैपेरॉन इक्वेशन से अगर आप देखें कि जब भी कोई फेज चेंज हो रहा होगा और उस फेज चेंज होने के दौरान या उसके बाद अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर भी चेंज होना चाहिए. इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वाटर है 100 डिग्री सी पे बॉयल होता रहेगा जब तक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. लेकिन अगर मैं चाहूँ कि वाटर 100 डिग्री सी पे बॉयल ना हो, 110 डिग्री सी पे बॉयल हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की बजाय 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा इन अकॉर्ड टू द टेम्परेचर के लिहाज से. मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के लिहाज से डिसाइड होता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा या इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा. तो अगर मैं चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे रहे सिस्टम, तो अगर टेम्परेचर मैं 100 की बजाय 110 पे बॉयल करना चाह रहा हूँ तो फिर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं रखूँगा मैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली प्रेशर भी चेंज करूँगा. और हाई टेम्परेचर पर अगर मैं बॉयल करवाना चाह रहा हूँ वाटर को तो उसके लिए मुझे प्रेशर भी हाई प्रेशर रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यही यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि टेम्परेचर और प्रेशर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि कितनी गिब्स एनर्जी, कितनी लेटेंट हीट होगी उसके अंदर. अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे मैं उसको बॉयल कर रहा हूँ या फेस ट्रांजिशन हो रही है हाई टेम्परेचर पे, तो उसके लिए प्रेशर भी उसके लिहाज से हाई प्रेशर होगा.
और उसके लिहाज से फिर आप लेटेंट हीट की कैलकुलेशंस कर रहे हो. If the two phase continues to coexist in equilibrium, because equation 16 applies throughout this change. अब अगर फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आता है फ्रॉम वन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस टू अनदर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, तो उस शिफ्ट के लिए मैं ये इक्वेशन 16 को लिख सकता हूँ इस तरह कि जो भी चेंज आया इन अल्फा फेज बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर will be equal to the change in the Gibbs energy in the beta phase because of the shift of the temperature pressure. दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाटर फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा वाटर की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो आपके लिए आसान होगा समझना कि वाटर अगर 100 डिग्री सी पे बॉयल हो रहा था अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं उस बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर देता हूँ. मैंने 100 की बजाय 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया और उसके लिहाज से मैंने प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया. तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आया फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम और दोबारा से फेज चेंज होना शुरू हो गई. तो अल्फा फेज में जितनी चेंज आई गिब्स एनर्जी की उस इक्विलिब्रियम शिफ्ट की वजह से बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बीटा फेज में जो भी चेंजेस आई उनकी जो चेंज होंगे वो कांस्टेंट होंगे बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 16. अब इस इक्वेशन में ये जो लास्ट इक्वेशन है डी जी अल्फा इज इक्वल टू डी जी बीटा, इसमें जो गिब्स एनर्जी के जो एक्सप्रेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12, ये दोबारा मैं बैक पे गया हूँ, ये डी जी के जो ये एक्सप्रेशन है गिब्स एनर्जी चेंज के एक्सप्रेशंस मैं रिप्लेस करता हूँ उसमें. ठीक है, डी जी अल्फा की जगह मैं एक्सप्रेशन रिप्लेस करूंगा और उसमें सुपरस्क्रिप्ट में मैं अल्फा लिखूंगा जो शो करेगा कि ये अल्फा फेज के लिए, और डी जी बीटा के लिए मैं बीटा फेज के लिए बीटा को शो करूंगा. तो यहाँ पे डी जी अल्फा और डी जी बीटा की जगह मैंने वो उसके एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दिए. ठीक है, आप देख सकते हैं वी अल्फा डी पी सेचुरेटेड माइनस एस अल्फा डी टी एंड फॉर बीटा फेज इज इक्वल टू वी बीटा डी पी सेचुरेटेड माइनस एस बीटा डी टी. ठीक है, अब इसको जब आप रीअरेंज करेंगे, जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के दौरान आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये अल्फ़ा और बीटा जो है ना, ये अल्फ़ा और बीटा आपने सिर्फ सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं उस सिस्टम के वेरिएबल्स के साथ मेंशन करना है. यहाँ पे ये डी टी के साथ बीटा मेंशन है, ये गलत है, ये एरर है. यहाँ पे डी टी के साथ ये बीटा मेंशन नहीं होगा. सिस्टम वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एंट्रोपी है, वॉल्यूम है. ठीक है, ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं. और प्रेशर और टेम्परेचर अगेन मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली हम चेंज कर सकते हैं, तो ये सिस्टम के वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन हाँ ये सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने से सिस्टम में चेंजेस आती हैं, लेकिन ये एक्सटर्नली चेंज हो सकते हैं, जबकि वॉल्यूम और एंट्रोपी ये सिस्टम के वेरिएबल्स हैं. तो वॉल्यूम और एंट्रोपी के साथ मैंने ये अल्फा और बीटा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर के साथ नहीं लिखूंगा. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर के साथ लिखा हुआ है बीटा, ये एरर है यहाँ पे. अच्छा, उसके बाद चूंकि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ अल्फा बीटा नहीं लिखा तो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ. डी पी सेचुरेटेड को कॉमन लूँ और डी टी को कॉमन लूँ, तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी. क्योंकि डी पी सेचुरेटेड यहाँ पे भी आ रहा है और डी पी सेचुरेटेड यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे डी पी सेचुरेटेड को अब ये अब ये एस डेल्टा एस अल्फा बीटा का मतलब है कि एंट्रोपी में ओवरऑल जो चेंज आ रहा है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज. ठीक है, ये उस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल चेंज इन द गिब्स एनर्जी, टोटल चेंज इन द एंट्रोपी ड्यू टू फेज ट्रांजिशन. और ये डेल्टा वी अल्फा बीटा शो कर रहा है टोटल चेंज इन द मोलर वॉल्यूम्स बिकॉज ऑफ द फेज ट्रांजिशन. इसके बाद नेक्स्ट है द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस अल्फा बीटा एंड द वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी अल्फा बीटा आर चेंजेस that occurs when a unit
amount of a pure chemical species is transferred from phase alpha to phase beta at the equilibrium temperature and pressure। ठीक हो गया कि जो भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैं उसकी वजह से और जो उस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर प्रेशर पे जो भी चेंज आ रहा है उस ओवरऑल चेंज को शो करने के लिए डेल्टा एस अल्फा बीटा और डेल्टा बी अल्फा बीटा के थ्रू शो कर लिया। ठीक हो गया। और एंट्रोपी का एक्सप्रेशन आपको पता है कि एंट्रोपी को हम किस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंट्रोपी को। तो जो एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है उसके लिहाज से डेल्टा एच में भी उतना ही चेंज आ रहा होगा। टेम्परेचर चूँकि कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर और प्रेशर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एंट्रोपी के एक्सप्रेशन के थ्रू मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ कि डेल्टा एस में जितना चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट फेज ट्रांजिशन, उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा एच में भी उतना ही चेंज आ रहा होगा एट दिस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक हो गया। यहाँ से मैं डेल्टा एस की वैल्यू निकालता हूँ जो कि डेल्टा एस होती है डेल्टा एच अल्फा बीटा ओवर टी। ये डेल्टा एस की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस एक्सप्रेशन में। तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन था डी पी सेचुरेटेड ओवर डी टी, इसको मैंने एस एच लिखा लेफ्ट साइड टर्म को, इज इक्वल टू डेल्टा एस अल्फा बीटा की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया डेल्टा एच अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय टी, और डिनोमिनेटर में डेल्टा वी अल्फा बीटा एस एच है। ठीक है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनी दिस इज अगेन क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि हमने ये लास्ट स्लाइड में भी देखी थी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा वी डी पी सेचुरेटेड ओवर डी टी। ये वही इक्वेशन है, इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखें तो ये यही इक्वेशन बनेगी। तो आपने देखा कि इसकी जो डेरिवेशन हुई है बेसिकली वो सिंपल इस बेस इक्वेशन से हुई है जिसमें हमने गिब्स एनर्जी के एक्सप्रेशंस को रिप्लेस किया, और उस गिब्स एनर्जी के एक्सप्रेशन रिप्लेस करने के बाद उसमें एंट्रोपी का एक्सप्रेशन को रिप्लेस किया, और फाइनली हमारे पास एक क्लैपेरॉन इक्वेशन बन जाती है। यहाँ तक क्लियर है? Next, for the particularly important case of phase transition from liquid to vapors, अब हमने पहले जर्नल लिखा अल्फा बीटा फेज के फॉर्म में, अब हम एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं जिसमें हम लिक्विड टू वेपर्स फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप अल्फा की जगह एल लिख सकते हैं और बीटा की जगह वी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो व्हेन एवर यू विल बी studying any case in which you are sure that the phase is changing from that state to the second state, तो वो जो भी states होंगे आपको पता होंगे कि पहली liquid state है, दूसरी vapor state है, तो उसके लिहाज से आप अल्फा और बीटा की जगह वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड और वेपर्स के लिए अल्फा बीटा की बजाय हमने एल वी डेल्टा एच के साथ एल वी लिख दिया और डेल्टा वी के साथ भी एल वी लिख दिया, वेयर डेल्टा वी एल वी इज इक्वल टू वी सुपरस्क्रिप्ट में वेपर्स माइनस वी सुपरस्क्रिप्ट में एल। दोबारा मैं बैक पे जा रहा हूँ क्योंकि आपने ये देखा था कि जब हमने डेल्टा वी अल्फा बीटा लिखा था तो ये डेल्टा वी अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? वी बीटा माइनस वी अल्फा के। मतलब ये डेल्टा वी के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट में जो लास्ट में जो फेज है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ पहले होगी, और जो फर्स्ट फेज जो होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव साइन के बाद होगी। तो उसी में ही अगर हम एल लिक्विड फेज की बात करें और वी वेपर फेज की बात करें तो डेल्टा वी एल वी जो होगा वो क्या होगा? वी इंटू वेपर फेज पहले हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में उसको, माइनस वी इंटू लिक्विड फेज। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो भी कंपोनेंट हम जिसमें चेंज आ रहा है उसकी अगर हम अज्यूम करें कि ये आइडियल कंपोनेंट है, तो वो आइडियल कंपोनेंट के लिए हम मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम आइडियल गैस के लिए तो n यूज़ करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स। ये
जो कंपोनेंट्स होंगे रियल कंपोनेंट्स, उनके लिए हम ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूज़ करते हैं जी, क्योंकि जो रियल कंपोनेंट्स होंगे उसमें कितनी एक्सपेंशन है या कितनी कंप्रेशन आ रही है, वो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं आर टी जी वी माइनस जी एल ओवर पी सैचुरेटेड। ठीक है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो गैस के लिए है। लेकिन अगर हम ये रियल कंपोनेंट के लिए लिखना चाह रहे हैं तो हम जी फैक्टर होता है जिसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, हम उसके थ्रू उस इक्वेशन को दोबारा से लिख सकते हैं, विच इज़ लाइक दिस इक्वेशन। ये आप देख सकते हैं, पी को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो पी वी इज इक्वल टू डेल्टा जेड आर टी, क्योंकि यहाँ पे फेज ट्रांजिशन की भी बात हो रही है फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज, तो उस फेज ट्रांजिशन में कितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में चेंज आ रहा है, अगर हम वो डिटरमिन कर लें तो इजीली हम फिर वॉल्यूम चेंज निकाल सकते हैं। इफ़ वी नो द temperature pressure at which that phase is changing, and if we know the compressibility factor change, we can easily determine the volume change. Combination of the last two equation gives an एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन दोबारा समझा दें प्लीज। ऊपर वाला मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये लास्ट एक्सप्रेशन था जो कि क्लैप्टॉन इक्वेशन है बेसिकली। इस क्लैप्टॉन इक्वेशन को हमने पहले अल्फा बीटा फेज के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको लिक्विड और वेपर फेज के फॉर्म में, क्योंकि अल्फा और बीटा कोई भी फेजेस हो सकती हैं। तो मैं अल्फा को स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि लिक्विड फेज है, बीटा को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ये वेपर फेज है। तो ये सिंपल क्लैप्टॉन इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की बेसिकली, जो मैंने आपके लास्ट स्लाइड में दिखाई भी थी। इस क्लैप्टॉन इक्वेशन में ये डेल्टा वी की जगह मैं इसको दोबारा किसी और वेरिएबल्स जिसको मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज है, ये हो सकता है कि फेज ट्रांजिशन में इतना इजी ना हो उसको मेजर करना, तो फिर उसको मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स की फॉर्म में और प्रेशर टेम्परेचर्स की फॉर्म में इजीली मेजर कर सकता हूँ। तो उस वजह से ये डेल्टा वी को मैंने लिखा कि अगर मैं रियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू आप उसमें चेंजेस देख सकते हैं कि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, तो उसको आइडियल गैस इक्वेशन जिस तरह होती है उस आइडियल गैस इक्वेशन को अगर मैं रियल कंपोनेंट के लिए लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फिर मुझे ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को मैंने रियल कंपोनेंट के लिए लिखा, तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू आर टी ओवर पी सैचुरेटेड इंटू डेल्टा जी एल वी। और इसमें ये जो डेल्टा वी की वैल्यू है, इस डेल्टा वी की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा क्लैप्टॉन इक्वेशन में, तो आप देखेंगे कि फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ठीक है, combination थैंक of यू the सो मच। last two equations gives on rearrangement, तो ये फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। डी एन नेचुरल लॉग पी सैचुरेटेड ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच एल वी आर टी स्केयर एंड डेल्टा जी एल वी। ठीक है, एक टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पे पहले से था, और जब ये डेल्टा वी के इस एक्सप्रेशन को मैं इसमें रिप्लेस करूँगा तो एक टेम्परेचर यहाँ से आ जाएगा, तो ये टी स्केयर हो जाएगा। ये जो पी सैचुरेटेड है, ये पी सैचुरेटेड जब यहाँ लेफ्ट साइड वाले टर्म के साथ जाएगा और उसको मैं डिफरेंशियल के अंदर लेके जाऊंगा तो ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट ओके? ये सिंपल मैथ है, आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ इनटू दिस एक्सप्रेशन यूजिंग डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन रूल। और डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन रूल को यूज़ करते हुए मैं इसको दोबारा ये टी स्केयर को अगर मैं डिफरेंशियल के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये 1/t की फॉर्म में डिफरेंशियल के अंदर जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप दोबारा इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं दोबारा ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है देन इट्स ओके। ठीक है,
सॉरी इंटीग्रेट कह रहा हूँ, इसको दोबारा डिफरेंशियल अप्लाई करें इसके ऊपर, डिफरेंशिएट करके आप चेक करें कि ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो 6.87 है, 6.87 से 6.88 पे मैं किस तरह गया कि टी स्केयर को मैं बेसिकली डिफरेंशियल के अंदर लेके गया, और जब मैं टी स्केयर को डिफरेंशियल के अंदर लेके जाऊंगा तो वो 1/t की फॉर्म में होगा, क्योंकि जब इसकी मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये 1/t स्केयर दोबारा बन जाएगा, और ये 1/t की जगह सिंपल dt रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, these equations starting from 6.86 till 6.88 are exact forms of the Clapeyron equation for pure species vaporization। ठीक है, जो प्योर स्पीशीज की वेपराइजेशन होनी है ये क्लैपेरॉन इक्वेशन से इजीली हम ड्राइव करके ये इक्वेशंस तक लेकर आ सकते हैं, और इसको हम फिर एग्जैक्ट इक्वेशंस कहते हैं। इसको क्यों एग्जैक्ट इक्वेशन कहते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन एग्जैक्ट इक्वेशंस के प्रोसीजर के थ्रू पॉसिबल है, इसलिए इसको हम एग्जैक्ट इक्वेशन कह रहे हैं। जी सर ये माइनस साइन 6.88 में कैसे है? कहाँ पे? अच्छा 6.88 में जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन इस वजह से है क्योंकि ये 1/t स्केयर को हम डिफरेंशियल के अंदर लेके गए। तो जब इसकी दोबारा से अगर आप डिफरेंशिएशन करें ना तो ये क्या बनेगा, ये -1/t स्केयर बनेगा। तो ये -1/t स्केयर जब बनेगा तो 1/t स्केयर यहाँ पे ये सच आ जाएगा, और माइनस माइनस होके प्लस होके दोबारा ये टर्म बन जाएगी। तो ये जो 1/t स्केयर को मैं डिफरेंशियल के अंदर लेके गया हूँ उसकी वजह से मैंने यहाँ पे माइनस साइन ऐड किया है, क्योंकि इसको जब दोबारा मैं इस फॉर्म में लेकर आऊँगा तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएशन करके देखिएगा ना, इसको डिफरेंशिएशन करके दोबारा इसको बैक पे लेके जाएं, आप देखेंगे कि दोबारा यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो चूंकि ये 1/t स्केयर को मैं डिफरेंशियल के अंदर लेके गया हूँ इस वजह से यहाँ पे ये माइनस साइन है। ओके यस सर ओके। इसके बाद फिर ये क्लैपेरॉन इक्वेशन में चूंकि आपने देखा कि जब ये फेज ट्रांजिशन हो रही है तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हमारे पास डिफरेंट फेज ट्रांजिशन के लिए डाटा होना ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड द शिफ्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर। उसके लिए हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर का डाटा होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि एंटोनी इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी टेम्परेचर के अगेंस्ट वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, या अगर हमारे पास वेपर प्रेशर पता है तो उस वेपर प्रेशर के अगेंस्ट हम वो टेम्परेचर निकाल सकते हैं जिस पे वो फेज चेंज हो रही है। तो एंटोनी इक्वेशन से पहले जो इक्वेशंस थी वो यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, और यहाँ पे एंटोनी इक्वेशन भी होगी साथ में, तो उसी की यहाँ पे डिस्कशन है कि इसको पहले मैं रीड कर रहा हूँ। द क्लैपेरॉन इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट थर्मोडायनेमिक्स relation providing a vital connection between the properties of the different phases। क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू आप डिफरेंट फेजेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। When applied to the calculation of latent heat of vaporization, its use presupposes knowledge of the vapor pressure versus temperature relation। वो कह रहे हैं कि क्लैपेरॉन इक्वेशन को जब आप यूज़ करते हैं लेटेंट हीट की कैलकुलेशन के लिए तो उससे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का डाटा हमारे पास है, या उसका रिलेशनशिप हमारे पास है, और जिस भी टेम्परेचर के अगेंस्ट हमने वेपर प्रेशर निकालना है हम इजीली उस रिलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स imposes no model of material behavior either in general or for particular species, such relations are empirical। और ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के जो एक्सप्रेशंस हैं चूंकि इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, इसके कोई वाइटल बैकग्राउंड नहीं है जिसके थ्रू ये ड्राइव होकर फाइनल एक्सप्रेशन बनता है, तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल या एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। एम्पिरिकल एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होगा, जिसकी कोई डेरिवेशन नहीं होगी, वो एक्सपेरिमेंटल वर्क के थ्रू आप उसको डेवलप करते हैं। तो ये जैसे एंटोनी इक्वेशन थी इस तरह ये जो बाकी इक्वेशंस भी हैं ये एम्पिरिकल इक्वेशंस हैं। डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट रिसर्चर्स, they conducted the experiments and based on the
outcomes, they develop some expressions which are called as empirical expressions, जिसके कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन चूंकि रिजल्ट्स इस तरह से आए थे उनके पास, एक पैरामीटर के चेंज होने से दूसरे पैरामीटर में जो चेंजेस आ रही थी, तो उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह इन्वॉल्व करके उन्होंने डेवलप किए कुछ एक्सप्रेशंस जिसको एम्पेरिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो ये एम्पेरिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के डाटास को इजीली प्लॉट कर सकते हैं। एज नोटेड इन इक्वेशन 6.6, a plot of P saturated versus 1/T generally yields a line that is nearly straight. बाज़ दफ़ा वो एग्जैक्ट स्ट्रेट होती है, बाज़ दफ़ा स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा उसमें टिल्ट होता है, तो उसकी वजह से फिर कुछ कोफिशिएंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं ताकि आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के डाटा को बेहतर तरीके से एस्टिमेट कर सकें। तो यहाँ पे जैसे ये एक एक्सप्रेशन है जो इनिशियली डेवलप हुआ था, जिसमें सिंपल एक्सप्रेशन है कि नेचुरल लॉग ऑफ वेपर प्रेशर कैन बी रिलेटेड विद A विच इज़ कांस्टेंट माइनस B विच इज़ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T। इनिशियली इस तरह से ये एम्पेरिकल एक्सप्रेशन डेवलप किया था कुछ रिसर्चर्स ने, और लेटर ऑन फिर ये फाइनली एंटोनी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम ये डिनोमिनेटर में जो टेम्परेचर है इसके साथ भी एक कांस्टेंट की वैल्यू ऐड करें तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप असेस कर सकते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के डाटा को। तो इनिशियली ये इस तरह से डेवलप हुई थी इक्वेशन, और लेटर ऑन फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और उसके बाद फिर फाइनली इसको एंटोनी इक्वेशन का नाम दिया, जिसमें आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के डाटा को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि क्लैपेरॉन इक्वेशन में आपने देखा था कि इसमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ये लेफ्ट साइड में जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के डाटा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में जो जा रहा है सिस्टम, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये इक्विलिब्रियम डाटा हो हमारे पास। तो जब ये इक्विलिब्रियम डाटा होगा तो फिर हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें हम लेटेंट हीट निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो निकाल सकते हैं, या इवन उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जो चेंज आ रहा है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनी इक्वेशन की फॉर्म में फाइनली एक्सप्रेशन इस तरह से बिल्डअप हुआ। इसी तरह एंटोनी इक्वेशन के अलावा कुछ और एम्पेरिकल एक्सप्रेशंस भी हैं डिफरेंट बुक्स में, जैसे ये वैगनर इक्वेशन है। इस वैगनर इक्वेशन में वेपर प्रेशर को आप टेम्परेचर के लिहाज से रिलेट कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये जो स्मॉल r है, या सॉरी यहाँ पे जो टा है, इस टा इज़ बेसिकली 1 माइनस TR। TR इज़ बेसिकली रिड्यूस टेम्परेचर। ठीक है, ये रिड्यूस टेम्परेचर को शो कर रहा है, और रिड्यूस टेम्परेचर आपको पता है कि जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको आप रिड्यूस टेम्परेचर कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में आप वेपर प्रेशर को असेस कर सकते हैं, तो इसको वैगनर इक्वेशन कहते हैं। इस वैगनर इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं ये A, B, C और D ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कि स्पीशीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो भी कंपोनेंट आप डिस्कस कर रहे होंगे उस कंपोनेंट की ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी। आप कंपोनेंट चेंज कर दें तो A, B, C, D की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने एंटोनी इक्वेशन में भी देखा था कि जो उसमें A, B और C इन्वॉल्व होते हैं, वो अगर आप किसी एक कंपोनेंट के लिए देखें तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए देखें तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। और ये वैल्यूज़ आती कहाँ से हैं? अगेन जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करके टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट बुक्स में टेबल्स की फॉर्म में वो वैल्यूज़ वहाँ पे ऐड कर दी। तो आप डिफरेंट बुक्स में उन टेबल से वो वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अब ये आपकी चॉइस है कि क्लैपेरॉन इक्वेशन को जब आप यूज़ करने जा रहे होंगे, उसमें अगर आपने वेपर प्रेशर डाटा को असेस करना है तो उसको आप एंटोनी इक्वेशन या वैगनर इक्वेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, और उसको फिर बैक पे जाके उसमें लेटेंट हीट, वॉल्यूम चेंज, कंप्रेसिबिलिटी चेंज में जो भी चेंजेस आ रही हैं, और इवन उसको फर्दर बैक पे जाके उसकी गिब्स एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन गिब्स एनर्जी जो होगी फॉर फेज ट्रांजिशन वो कांस्टेंट होगी। एक फेज़ की जो भी गिब्स एनर्जी है दूसरी फेज़ की वही गिब्स एनर्जी होगी।
तो बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप फाइनली गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर का मकसद यही था कि हमने दोबारा बेस एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशन गिब्स एनर्जी की तरफ थी, और उसको हमने 2 फेज के लिए अप्लाई किया कि अगर फेज चेंज आता है, इससे पहले हमने जो भी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशंस लिखे थे ये सिंगल फेज के लिए लिखे थे कि उसमें अगर सिंगल फेज में एंट्रोपी और वॉल्यूम में चेंज आता है तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, या सिंगल फेज में टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आता है तो गिब्स एनर्जी में क्या चेंज आएगा। लेकिन आज के लेक्चर में हमने इसको 2 फेज के लिए अप्लाई किया, और 2 फेज के लिए अप्लाई करके हमने देखा कि चीज़ों में किस तरह से चेंजेस आती हैं, कौन से प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू प्लीज़ आस्क। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, नो क्वेश्चन। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये तो TR दिया हुआ था वैगनर इक्वेशन में, ये TR का मतलब क्या है सर? ये मैंने भी आपको बताया, TR इज़ फॉर रिड्यूस टेम्परेचर। जो सबस्क्रिप्ट में आर लिखा है, स्मॉल आर, वो रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया कि जो PR है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर के साथ स्मॉल आर लिखा है तो वो होगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर कि जिस प्रेशर पे भी आप काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल प्रेशर। अगर टेम्परेचर की बात करें, रिड्यूस टेम्परेचर की, तो रिड्यूस टेम्परेचर होगा इज़ द रेशो ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर जिस पर आप काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारा एक्चुअल टेम्परेचर प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर से कितना अवे है। उसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है और उस पॉइंट से हम कितना दूर हैं, उसकी लिहाज से सिस्टम में क्या चेंजेस आ रही हैं। हम क्रिटिकल पॉइंट से जब करीब जाते जाएंगे तो सिस्टम में जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। क्रिटिकल पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो सिस्टम में जो चेंजेस आ रही हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी। तो एक रेफरेंस पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ में, जिसकी वजह से हम बेहतर तरीके से चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। और रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ का एक और फ़ायदा भी होता है कि रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ की यूनिट्स कोई नहीं होते, तो यूनिट कंसिस्टेंसी का कोई इशू नहीं होता हमें। ठीक है, जी समझ आ गया आपको? जी सर ठीक है, थैंक यू सो मच। राइट, सो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी जो गुड न्यूज़ है वो ये कि आपका नेक्स्ट वीक से जो थर्मोडायनामिक्स 2 है, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2, ये 100% ट्रांसफ़र हो गया सब्जेक्ट डॉक्टर आसिफ को। और नेक्स्ट वीक से अब आपको डॉक्टर आसिफ अख्तर साहब केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2 का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो सिर्फ ये एक वीक तक मैंने पढ़ाया था, पहले ये था कि हाफ़ मैंने पढ़ाना था, हाफ़ उन्होंने पढ़ाना था। लेकिन अब कुछ चेंजेस इस तरह से आई हैं कि आमिर साहब PhD के लिए शायद अनकरीब जाने वाले हैं, तो उनका सब्जेक्ट मुझे मिल गया, और जो मेरा और डॉक्टर आसिफ का शेयरिंग में था ये केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, ये अब 100% डॉक्टर आसिफ साहब पढ़ाएंगे। अब आपका ये काम है कि जो CRs हैं वो डॉक्टर आसिफ साहब से कांटेक्ट कर लें, वो ऑलरेडी इस टीम के अंदर ऐड हैं, तो उनसे एक दफ़ा पूछ लीजिएगा कि उन्होंने सेम टाइमिंग रखनी है या वो चेंज करना चाह रहे हैं। मैं तो सेम टाइम टेबल में जो आपकी टाइमिंग्स थी मैं उसी को फॉलो कर रहा था, लेकिन शायद वो कह रहे थे कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक से आपको केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2 जो है ये डॉक्टर आसिफ साहब कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी इस वीक आपने जो भी पढ़ा, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम टू मी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स अगेन इफ़ यू वांट। ठीक है, बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल फिनिश टुडेज लेक्चर। एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब आज आपकी हमारे साथ लास्ट क्लास है? जी, आज आपकी हमारे साथ लास्ट क्लास है? यस, आज भी डॉक्टर आसिफ साहब ने लेनी थी, लेकिन जो उन्होंने मुझे कहा कि ये एकदम से चेंज हुआ है सब्जेक्ट, तो आज के आप ले लें, नेक्स्ट वीक से आसिफ साहब लेंगे।
मैं अब आपके सेशन को नहीं दूसरे सेशन को पढ़ा रहा हूँ। मैं एमएससी का सब्जेक्ट मुझे मिला है और 2021 सेशन जो होगा उसको मैं पढ़ाऊँगा, चूँकि आमिर अब्बास आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, इस वजह से ये चेंजेस आई हैं, राइट।